Hey, what's up guys? Welcome back to our YouTube channel Snath Online Classes. Today once again I am Vidyasagar is present in front of class 6 to discuss subject math, in which I am going to explain about LCM. What is LCM and how it can be found? I am going to explain about it. So please like the channel, share and subscribe it. Now let us comes to try to understand what is LCM and how it can be found. So as you know, the LCM is the smallest common multiples of two or more numbers. The smallest common multiples, one thing you have to remember, of two or more number is called as its lowest common multiple, and the lowest common multiple is right in the short form is LCM. So LCM of 2, 4, 6 and 8 is equal to 24. How it can be calculated? So first of all, it is calculated by two ways. To find there are two ways to find LCM. One is factorization method, prime factorization method. One is prime factorization method, and second is long division method. Methods. So first let us come to know what is prime factorization method. Prime factorization methods. In this method, first of all, we have to find the prime factors, and then we have to multiply the common prime factors and non-common prime factors. So let us look what is the prime factor of what? 2. So prime factors of 2 is 2 बराबर 2, 1. So prime factor of 2 is equal to 2. Prime factor of 2 is equal to 2, and prime factors of 6 is equal to 2, 3 and 6. Prime factors of 8 is equal to 2, 4, 8. What is common factors? What is common factors? Common prime factors. Two. These are the prime factors which is common. And what is non-common? Non-common prime factors are 2, 3 and 2 and 3, not 6. 2 and 3. And non-common factors are 4 and 2 into 2 and 2 and 2 and 3 and 2 into 2 into 2. So non-common factors are what? Non-common, uncommon prime factors बराबर what? 3 into 2 into 2. So multiplying we get 2 into 3 into 2 into 2 is equal to 24. It is the LCM of 2, 6 and 8. Another example, LCM of 16 and 24. LCM of 16 and 24 is equal to what?
तो 16 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स इसका हो जाएगा 2 8 2 2 तो 4 फिर 2 तो 2 फिर 2 तो 1, तो इसका 16 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 24 का क्या हो जाएगा, 24 का हो गया 2 इंटू 12 2 6 फिर 2 3, तो ये 24 का हो गया इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 3, इसलिए एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 48। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो दीज आर द मेथड्स। सबसे पहले यहाँ पर हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद देखते हैं कि जो कॉमन है उसको अनकॉमन प्राइम फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है वही हमारा एलसीएम हो जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी करके आपको दिखाया है। यहाँ पर भी 16 का प्राइम फैक्टर निकाला, 24 का प्राइम फैक्टर निकाला, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे इसका कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ पर कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर अनकॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 2 इंटू 3, ये देखिए ये हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो गए, और ये दोनों हमारा अनकॉमन, यहाँ पर 2 है यहाँ 3 है, ये कॉमन नहीं है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये कॉमन जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा रिजल्ट 48 आया, और ये 48 हमारा हो गया क्या, एलसीएम। अब दूसरा मेथड इसका है बाय कॉमन डिवीज़न मेथड। उस मेथड को हम लोग कहते हैं कॉमन डिवीज़न मेथड्स। तो क्या है ये, आइए देखते हैं। दूसरा मेथड है क्या, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, या इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिवीज़न मेथड्स। इसको हम लोग कॉमन डिवीज़न मेथड्स भी कहते हैं, कॉमन डिवीज़न मेथड्स। तो कॉमन डिवीज़न मेथड्स के द्वारा हम लोग कैसे एलसीएम प्राप्त करेंगे, कॉमन डिवीज़न मेथड्स। तो कॉमन डिवीज़न मेथड्स में सबसे पहले हम इसको एक साथ लिखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल किसका है, 2 6 8, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे 1 3 4। फिर अब लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 3 जा 6 4 जा 24, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा था 16 एंड 24, तो 16 और 24 का हम लोग कॉमन डिवीज़न मेथड से, तो 2 से 2 8 जा 16, 12 जा, फिर 2 से लगाए तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से लगाए तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसको हम देख रहे हैं कि कहीं पर यह कटने वाला नहीं है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सभी इसका प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखिए वही चीज़ आया ना, दोनों सेम है। 4 2 4 2 1 3 1 3, बोथ आर सेम, तो इसका भी एलसीएम क्या आएगा 48 आंसर। सो दीज आर द 2 मेथड्स टू फाइंड द एलसीएम ऑफ अ गिवन नंबर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। इसमें पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकाल करके देखते हैं कौन कॉमन है, उसको अनकॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमको डायरेक्ट मिल जाता है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो सभी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हमारा ये एलसीएम निकल जाता है।
बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। अब आइए, इसमें एक चीज़ और, आपको एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है जो HCF और LCM के बीच में है। किसी भी 2 नंबर का आप LCM निकालें और इस 2 नंबर का अगर HCF आप निकालेंगे तो वो रिलेशन क्या दर्शाता है ना कि आप HCF और LCM को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अब जैसे 16 और 24 का LCM आ गया 48 और इसका HCF कितना होगा आपको पता है। HCF पहले मैं बता दिया हूँ कि HCF ऑफ 16 एंड 24, तो ये कितना होगा बताइए। HCF ऑफ 16 एंड 24, तो HCF 24 इज़ डिवाइडेड बाय 16 1 टाइम्स में तो 8, फिर 8 इज़ डिवाइडेड बाय 16 2 टाइम्स में तो 16, तो इसका HCF हमारा आ गया कितना 8। अब ये 48 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, वह 16 और 24 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर कि 8 इंटू 48, 8 इंटू, इसलिए 8 इंटू 48, 8 8 जा 64, करीब 6, 4 8 जा 32, 6 38, 384 आया। इसी तरह से 16 और 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 16 इंटू 24 को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको हम देखते हैं 24 6 जा 144, करीब 14 और 14 404, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 36, 30 ओहो 34, जो 38 384, तो बोथ केस में दोनों सेम आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 16 इंटू 24 इज इक्वल टू 48 इंटू 8। अब ये 48 क्या है LCM है और ये क्या है HCF है, तो हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये बहुत अच्छा रिलेशंस है, इसको आप याद रख सकते हैं। तो नोट में हम लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर LCM इंटू HCF। इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा और HW आपका रहा, इसके आधार पर आप बनाएंगे कौन सा एक्सरसाइज 2.7, सॉल्व एक्सरसाइज 2.7 एज इट इज़ योर HW। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, इस दोनों का है HCF हम निकाले 8 आया, LCM 48 आया। अब 48 और 8 को दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 384 आया है। अब 384 फिर 16 और 24 को भी मल्टीप्लाई कीजिए तो 384 आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 एंड 380 दो नंबर का प्रोडक्ट उस दोनों नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और एक चीज़ कि इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर दिस रूल इज applicable only for two numbers. This rule is applicable only for two numbers. Okay, two numbers. It is not applicable more than
2 नंबर्स। जैसा कि इस केस में आप इसको नहीं लागू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2, 6, 8 का एलसीएम तो हमें पता है कि इसका एलसीएम 28 आया। अब इसका एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ ऑफ 2, 6 एंड 8 इज इक्वल टू 2 ही आएगा। उसके बाद तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48। अब प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन 3 नंबर्स is 2 into 6 into 8 is equal to 96. Therefore, we can say that the HCF into LCM is not equal to products of 3 numbers. इसलिए हम कह सकते हैं कि this rule is not applicable for 3 numbers or more than 2 numbers. Understood? So these are the things we have discussed today. In the next video I shall meet with solution of 2.7 exercise 2.7. Till that I want to say goodbye. Thank you. See you.